ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشیں، اموات کی مجموعی تعداد 552 ہو گئی، 628 افراد زخمی۔ ریلیف سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی فنڈ قائم کر دیا، امدادی سرگرمیوں کے لیے 5 ارب روپے جاری کر دیے۔ وزیر اعظم کی قوم سے مشکلات میں گھرے ہم وطنوں کی دل کھول کر مدد کی اپیل۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے ریلیف آپریشن جاری۔ وفاقی وزارت صحت کی جانب سے ادویات کی پہلی کھیپ بلوچستان روانہ۔ پاکستان ریلوے بھی امدادی سرگرمیوں میں شریک۔ پشاور کینٹ سے امدادی اشیاء لے کر اسپیشل ٹرین کی کوئٹہ روانگی۔ لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثے پر سوشل میڈیا پر مذموم مہم چلائی گئی۔ دشمن قوتیں ملکی دفاع کو کمزور کرنے کے در پہ ہیں۔ عمران خان نے ملک میں نفرت کے کلچر کو پروان چڑھایا۔ ملک سے محبت اقتدار کے ساتھ مشروط نہیں ہوتی۔ وطن کی خاطر جان قربان کرنے والے ہمارے محسن ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔ کوئی سیاسی انتقام نہیں، ممنوعہ فنڈنگ فیصلے پر آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ تحریک انصاف فورن ایڈٹ پارٹی ڈکلیئر ہو چکی۔ عمران خان نے پی ٹی آئی ملازمین کے ذاتی اکاؤنٹس میں پیسہ منگوایا۔ خیرات کا پیسہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ تکنیکی معاملہ نہیں، قانون کے مطابق جرم ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورن سے۔ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے۔ بیرونی ادائیگیوں سے بھی توازن خراب ہوا، لیکن اب حالات کنٹرول میں ہیں۔ ڈالر نیچے آ رہا ہے۔ ہمیں اپنی معیشت مستحکم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر بار دوست ملکوں کے پاس مدد کے لیے نہ جانا پڑے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل۔ ملکی معیشت میں بہتری کے آثار نمایاں۔ ڈالر کی قیمت گرنے سے کئی شعبوں میں ریلیف۔ بیجنگ اور پیرس کا قرض رول اوور کرنے کا فیصلہ۔ امپورٹ بل میں کمی سے تجارتی خسارہ کافی حد تک کنٹرول کر دیا گیا۔ مثبت خبروں نے اسٹاک مارکیٹ میں پھر سے جان ڈال دی۔ صدر مملکت کا لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کو ٹیلی فون۔ قوم کے بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت۔ شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے ملک مضبوط اور تا قیامت رہے گا۔ پورے قوم اپنے شہداء کی مقروض ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی۔ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ شہر اقتدار کی شاہراہوں پر سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ جگہ جگہ قومی پرچموں کے سٹال سج گئے۔ یوم استحصال بھرپور طریقے سے منانے پر کل جماعتی حریت کانفرنس کا پاکستان کے حکومت اور عوام سے اظہار تشکر۔ پاکستان نے ہر مرحلے پر کشمیریوں کا ساتھ دیا۔ حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ حریت قیادت۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، 16 فلسطینی شہید، 120 سے زائد زخمی، 100 سے زائد میزائل داغے گئے، 30 عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی فوج کی فلسطینی علاقوں پر مزید حملوں کی تیاریاں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ روس اور ترکی کا شام میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مل کر کام کرنے کا عزم۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کی سوچی میں ملاقات۔ توانائی اور اقتصادی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ترکی روس سے گیس کی درآمد کے لیے کچھ ادائیگی روبلز میں کرنے پر متفق۔ مانسون کے نئے اسپیل کا آج سے آغاز۔ کشمیر، اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، مشرقی بلوچستان اور جنوب مشرقی سندھ میں موسلادھار بارش کا امکان۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے اور ندی نالوں میں طوفانی کا خدشہ۔
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में बारिशों और सैलाब में जाँ बहक अफराद की तादाद 552 हो गई है, जबकि 628 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी फंड कायम करने की अपील करते हुए आवाम से कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में मुब्तला अहले वतन की दिल खोल कर मदद करें। तफसील बताएंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। मुल्क में हालिया मानसून की बारिशों और सैलाब के बायस वसी पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। इस कुदरती आफत के दौरान 49,700 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ हर दूसरे रोज सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करके मौके पर मुतल्लिका हुकाम को मुतासरीन की बहाली के लिए फौरी इकदाम करने की हिदायत दे रहे हैं। फसलों का जो तबाह हुआ उसके कॉम्पनसेशन और दूसरी कॉम्पनसेशन और मिलकर हम इंशाल्लाह जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो गिरा है, डैमेज हुआ है, उसको रिपेयर करेंगे। वजीर आजम ने रिलीफ सरगर्मियों की निगरानी के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दी। उन्होंने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी फंड कायम करते हुए अवाम से अपील की है कि मुश्किल की इस घड़ी में अहले वतन सैलाब मुतासरीन की दिल खोल कर मदद करें। इमदादी रकूम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 2022 के अकाउंट नंबर G12164 में जमा कराई जा सकती हैं। रिकॉर्ड बारिशों से बलूचिस्तान में गैर मामूली तबाही हुई है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी बहुत नुकसानात हुए हैं। मुश्किल माशी हालात के बावजूद मुतासरीन के लिए 5 अरब रुपए फौरी जारी कर दिए गए हैं। विफाकी हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। वजीर आजम ने सूबाई हुकूमतों से अपील की है कि मुतासरा इलाकों को आफतज़दा करार दें ताकि इमदादी कामों को मजीद तेज किया जा सके। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन में इमदादी रकूम की फराहमी का अमल भी जारी है। पाक फौज और सिविल इदारे रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ हैं। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में होने वाले इजलास में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों और गुज़श्ता रोज़ होने वाले फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर हिदायत की कि कुदरती आफात से निपटने के लिए कौमी और सूबाई इदारे मिलकर रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों को मजीद मौसर अंदाज से अंजाम दें। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि ममनुआ फंडिंग का फैसला सीधा मामला है जिस पर आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये तकनीकी मामला नहीं, कानून के मुताबिक जुर्म है। तहरीक इंसाफ फॉरेन एडिड पार्टी डिक्लेयर हो चुकी है। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान आरिफ। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान ने PTI के मुलाजमीन के ज़ाती अकाउंट्स में पैसा मंगवा कर वसूल किया। इमरान खान ने खैरात के पैसे को सियासी मकासद और ज़ाती अखराजात के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में मुश्किलात खड़ी करते रहे। अपनी पार्टी के ओहदेदारों के अकाउंट्स के अंदर फॉरेन फंडिंग मंगाकर उसको इस्तेमाल किया है और तमाम लोग सिग्नेटरीज हैं इमरान खान साहब के समेत। 2008 से ये मंसूबा शुरू हुआ। 2013 में मुल्क के पार्लिमानी सिस्टम को, मुल्क के अंदर जमहूरियत को, आपको याद होगा 2014 में धरना हुआ था। किसने फंड किया था धरना? इसी फॉरेन फंडिंग ने फंड किया था वो धरना। मुल्क के पार्लियामेंट के अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, गंदे कपड़े लटकाए, मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मचाकर CPEC को रोकने की कोशिश की गई। ये वो माइलस्टोन्स थे, ये वो डिलीवरी पॉइंट्स थे जो कि आपने इन फॉरेन फंडर्स को देने थे, उनसे कमिटमेंट्स की हुई थी। मंसूबे के तहत मुल्क के वजीर आजम को गले से घसीट दो की मुहिम चलाने की कोशिश की, मुल्क को अंदर सिविल नाफरमानी की कॉल्स दी, मुल्क को जलाने की कॉल्स दी, जो आज तक रवैया और फाशिज्म जारी है। बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ मुल्क की तारीख में जब नवाज शरीफ को अपनी कुर्सी से हटाया गया। जिस वक्त मुल्क में CPEC था, मुल्क 14,000 मेगावाट बिजली बना रहा था, मुल्क की तरक्की उस वक्त 6% पे थी इनके अपने रिकॉर्ड के मुताबिक। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान फॉरेन एजेंट हैं। उन्होंने फॉरेन फंडिंग ली और इलेक्शन कमीशन में झूठा बयान हल्फी जमा करवाया। इमरान खान ने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया, CPEC मंसूबे को रोका, कश्मीर का सौदा किया और मुल्क की तरक्की की शरह को मनफी किया। 2018 से लेकर 2022 तक इस मुल्क के साथ क्या हुआ? 6% की तरक्की। क्या वजह थी कि आप उसको मनफी लेकर और आप उसकी तरक्की को आपने नुकसान पहुंचाया? क्या वजह थी कि CPEC को आपने रोका? ये फॉरेन फंडिंग का रिवॉर्ड था, ये वो कमिटमेंट थी जो आपने पूरी करनी थी। उसके बाद आपने कश्मीर का सौदा कर दिया, एक न्यूक्लियर स्टेट को माशी तौर पर मफलूज करके कमज़ोर करने की कोशिश की।
नौजवान को गरीब किया, मुल्क की वफाक की इकाइयों में तकसीम पैदा की इमरान खान साहब आपने, मुल्क में नफरत फैलाई, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पहुंचाई, मुल्क के मीडिया की आवाज़ों को और मीडिया को कैद किया आपने, मुल्क के ऊपर फाशिस्ट रवैया मुसल्लत हुआ। ये खाली फॉरेन फंडिंग का मामला नहीं है। क्यों माशी तौर पर और आपने डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर, खारजी सतह के ऊपर, सफारती सतह के ऊपर मुल्क को आइसोलेट किया? ये वो रिवॉर्ड्स थे जो आपने कमिटमेंट्स की हुई थी, जो इस फॉरेन फंडिंग के एवज आपने उन फॉरेन फंडर्स को देने थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद सैलाब से पैदा शुदा सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने सूबों को हिदायत की है कि वो अपने सूबों में सैलाब ज़दा इलाकों को आफत ज़दा करार दें ताकि रिलीफ की सरगर्मियाँ ज्यादा मुतहरिक हो सकें। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि हेलीकॉप्टर हादसे पर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर दिफाई इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाई जो काबिल मज़म्मत है। सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दुश्मन कुव्वतें मुल्की दिफा को कमज़ोर करने के दर पे हैं। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले हमारे मोहसिन हैं। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे राना इफ्तिखार अहमद। सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि फौजी अफसरान ने इमदादी कार्रवाइयों के दौरान जामे शहादत नोश किया। सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने वालों की कुछ लोग सरपरस्ती करते हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन कुव्वतें मुल्की दिफा को कमज़ोर करने के दर पे हैं। जो शहीद हों वो मुल्क व कौम की खिदमत करते हुए अपनी जान जो है कुर्बान कर दें और उनको मौज़ूए बहस, सियासी मौज़ूए बहस बनाना और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना इस हादसे के मुतल्लक़, इस सानिया के मुतल्लक़ और साथ जो है हमारे जो दफ़ाई अदारे हैं उनके मुतल्लक़, दफ़ाई अदारों की क़यादत के मुतल्लक़, मैं समझता हूँ कि ये पस्ती की इंतहा है। और इन लोगों ने जिन्होंने ट्वीट्स किए या फेसबुक पे पोस्ट की, उनकी बाकायदा सरपरस्ती की जाती है, माली सरपरस्ती की जाती है। हमारा दुश्मन जो है, जो इससे इधर चंद मील दूर सरहद के उस पार जो है, उसकी ख्वाहिश है पिछले 75 साल से कि हमारी दफ़ा जो है वो कमज़ोर हो। अब उनको जंग की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर से ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो अदारों को गालियाँ देते हैं, शहादतों की तकरीम नहीं करते। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि एक शख्स ने इक़्तिसादी मफादात के लिए नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की। मशरूत नहीं किया जाता कि आप मुझे इक़्तिदार दें और मेरे इक़्तिदार को सहारा दें, मुझे इक़्तिदार में सदा रखें, हर आने वाले इलेक्शन के ऊपर मेरी सरपरस्ती करें, तो मैं जो है आपके मुतल्लिक़ जो है अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करूं और अगर इक़्तिदार छिन जाए तो गाली गलोच की ज़बान इस्तेमाल करूं। एक माशरे में, एक ख़ानदान में, एक शहर में, एक सोसाइटी में जो है इख्तलाफात हो सकते हैं, वो कोई अचंभे वाली या कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन इखलाक का दामन हाथ से छोड़ देना, वो नंगी ज़बान इस्तेमाल करना उसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर और फेसबुक पे और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हमारा माशरा नहीं था। वज़ीर दिफा ने कहा कि मुल्क से मोहब्बत इक़्तिदार के साथ मशरूत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वतन पर जान कुर्बान करने वाले हमारे मोहसिन हैं, कौमें अपने मोहसिनों को कभी नहीं भूलती। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले पाक फौज के अफसरान के अहले खाना को टेलीफोन किया और ताज़ियत का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद के बेटे कैप्टन अहमद अली से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शोहदा की कुर्बानियों की वजह से आज पाकिस्तान मजबूत है। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद एक सच्चे और दलेर ऑफिसर थे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ब्रिगेडियर खालिद शहीद के बेटे साद को भी टेलीफोन किया और उनसे ताज़ियत की। उन्होंने कहा कि ब्रिगेडियर खालिद शहीद एक बहादुर सपूत है और पाकिस्तान को अपने इन बहादुर बेटों पर फ़ख्र है। सदर ममलिकत ने ब्रिगेडियर अमजद हनीफ शहीद के भाई मेजर असद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें अपने बहादुर अफसरों पर फ़ख्र है और अल्लाह शहीदों के ख़ानदान को हौसला दे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने नायक मुदस्सर फ़याज़ शहीद के लवाहिकीन को भी फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि कुर्बानी का जज्बा पाकिस्तान में मुनफरद खुसूसियत है और इसे महफूज रखा गया है। को पायलट मेजर तलहा मनान शहीद के वालिद से बातचीत करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मेजर सईद अहमद शहीद के भाई स्क्वाड्रन लीडर अमीर अली को भी टेलीफोन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फ़ख्र है। उन्होंने सोगवार ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की।
وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے، بیرونی ادائیگیوں سے بھی توازن خراب ہوا، لیکن اب حالات کنٹرول میں ہیں اور ڈالر نیچے آ رہا ہے۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر بار دوست ملکوں کے پاس مدد کے لیے نہ جانا پڑے۔ اس بارے میں رپورٹ کریں گے ضمیر عباس۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ڈالر کی قیمت کو کم کرنے کے لیے پرتعیش اشیاء پر پابندی عائد کرنا مجبوری ہے۔ یہ پابندی اگلے 3 ماہ مزید برقرار رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کرنے کے لیے رواں مالی سال 35 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کا ہدف مقرر کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے اور عوام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے بھرپور تعاون کیا۔ اب حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ جب 80 بلین ڈالرز کا ہم امپورٹ کریں گے جو ہم نے 2020-21 میں کیا اور صرف 31 بلین کا اس کے سامنے ایکسپورٹ کریں گے تو پاکستان میں ٹریڈ کا خسارہ 48 بلین ڈالرز اگر ہوگا تو وہ ملک جو 48 بلین ڈالر یا 15% آف GDP اپنا ٹریڈ کا خسارہ کرتا ہے وہ ملک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، معیشت اس کی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کووڈ کے زمانے میں سستی ترین LNG مل رہی تھی، پھر بھی کسی نے وہ سودا نہیں کیا، اور جو LNG گیس $4 میں مل رہی تھی کووڈ کے زمانے میں آج وہ $40 میں بھی دستیاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے پورے ملک میں اس وقت گیس کی شارٹیج ہے اور ہم کو بجلی جو ہے وہ فرنس آئل سے بنانی پڑ رہی ہے، مہنگی ترین بجلی۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ہم نے ملک میں کاروبار کے فروغ کے لیے صنعتوں کو دی جانے والی بجلی اور گیس کے نرخ پورے پاکستان کے لیے یکساں کر دیے ہیں۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ IMF پروگرام میں جانا ہماری خواہش نہیں بلکہ مجبوری تھی۔ اس موقع پر KCCI کے صدر محمد ادریس اور پیٹرن ان چیف زبیر موتی والا نے وفاقی وزیر خزانہ کو تاجروں اور صنعت کاروں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ ضمیر عباس نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ موجودہ حکومت کی مسلسل کوششوں سے ملک کی معیشت میں بہتری کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ ڈالر کی قیمت گرنے سے کئی شعبوں میں عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد محمد شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی حکومت عوام کو ریلیف کے حوالے سے سخت دباؤ کا شکار رہی۔ سابق حکومت کی پالیسیوں سے نہ صرف عوام کو مسلسل مالی بوجھ کا سامنا رہا بلکہ موجودہ حکومت کے لیے اقتصادی حالات کو سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا۔ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے حکومت نے کچھ سخت فیصلے بھی کیے، تاہم جہاں موقع ملا عوام کو ریلیف بھی فراہم کیا گیا۔ 14 اگست کو IMF کے اجلاس کے نتیجے میں اچھی خبر کی امید کے علاوہ چین اور پیرس کی جانب سے قرضہ رول اوور کرنے کا بھی ملکی معیشت کے لیے اچھا فیصلہ ثابت ہوا۔ پرتعیش اشیاء کی درآمد پر پابندی کے مثبت اثرات بھی سامنے آنے لگے، جس سے امپورٹ بل میں کمی سے تجارتی خسارہ کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا۔ ڈالر کی قیمت گرنے سے سونے کی قیمت میں کمی کا رجحان دیکھنے میں آیا۔ اچھی خبروں نے سٹاک مارکیٹ میں بھی ایک بار پھر سے جان ڈال دی۔ حکومتی کوششوں سے ڈالر کی قیمت کم ہوئی تو روپے کی قدر بڑھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس سے ڈالر خریدنے کی حوصلہ شکنی ہوئی اور فروخت کا رجحان نظر آیا۔ ڈالر پر سرمایہ کاری کرنے والوں نے نقصان سے بچنے اور منافع کیش کرنے کے لیے دھڑا دھڑ ڈالر فروخت کیا۔ یہ رجحان آئندہ دنوں میں بھی برقرار رہنے کی توقع ہے۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت $90 سے نیچے چلی گئی۔ آنے والے دنوں میں حکومت عوام کو پیٹرول پر مزید ریلیف دینے کے لیے کوشاں ہے۔ ڈالر اوپر جانے پر موٹر ساز کمپنیوں نے گاڑیوں کی قیمتوں میں بھاری اضافہ کر دیا اور ڈالر نیچے آنے پر گاڑیاں بھی دوبارہ سستی ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور کاروباری ہفتے کے دوران ڈالر کی قدر میں $14.44 کی کمی ہوئی، جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں 2000 سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے ذیشان احمد۔ گزشتہ کاروباری ہفتہ ملک کی معیشت کے لیے بہترین ثابت ہوا اور حکومت کی مثبت معاشی پالیسیوں اور وزیر اعظم شہباز شریف کے تاجر دوست پالیسیوں کے باعث انٹر بینک میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر مستحکم رہی۔ ڈالر 239 روپے کی سطح سے گر کر 224 روپے پر آ گیا۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ نے ایک بار پھر 42,000 کی نفسیاتی حد کو عبور کیا۔ کاروباری ہفتے کے دوران ڈالر کی قیمت میں 14 روپے سے زائد کی کمی ہوئی، جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس میں 2000 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں توقع ہے کہ روپے پر پریشر کم ہوگا، جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے حجم میں بھی اضافہ ہوگا۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن بڑھ کے $34 بلین تک پہنچ گئی ہے۔ مارکیٹ کی پرائس ارننگ ریشو بڑھ کے 5 سے بھی اوپر آ چکی ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مارکیٹ کے والیومز میں تقریباً 70% کا اضافہ ہوا ہے اور 26 کروڑ شیئر سے بھی زیادہ کا کام اب مارکیٹ میں ہونے لگا ہے. یہ زبردست اچیومنٹ ہے پچھلے ایک ہفتے کے دوران. ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل ایگریمنٹس کے تحت تقریباً $4 بلین مزید امداد پاکستان میں آنے کی امید ہے. حکومت کی کوششیں رنگ لائی ہیں. موجودہ حکومت نے سر توڑ کوشش کی کہ ان تمام جو نیگیٹو چیزیں تھیں جس میں خاص طور پہ بڑھتا ہوا امپورٹ کا بل تھا سے کنٹرول کرا جائے اور وہ کنٹرول ہوا. اس کے علاوہ ریکارڈ ریکوری ٹیکس کلیکشن بھی ریکارڈ ہوئی. کاروباری ہفتے کے پہلے دن انڈیکس 42 پوائنٹس، دوسرے دن 115 پوائنٹس، تیسرے دن 877 پوائنٹس، چوتھے روز 356 پوائنٹس، جبکہ کاروباری ہفتے کے آخری دن 670 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اسٹاک مارکیٹ میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ تعمیرات، کیمیکل، بینک اور دوسرے شعبوں میں ترقی کا عمل تیز ہو گیا ہے. ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کمبوڈیا کے وزیر اعظم ہون سین سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون اور عوامی رابطوں کو فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا. وزیر خارجہ نے کمبوڈیا آسیان ریجنل فورم کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی. کمبوڈیا کے وزیر اعظم نے پاکستان کی عوام اور قیادت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کے کمبوڈین ہم منصب پر 100 خوان کے درمیان ملاقات میں علاقائی سلامتی سے متعلق امور پر گفتگو ہوئی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے آسیان ریجنل فورم کے ساتھ پاکستان کی مسلسل وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے ان تعلقات کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا. مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے فیصلے میں عمران خان کے جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا. لندن میں پارٹی قائد محمد نواز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صادق اور امین ہونے کا دعوے دار جھوٹا اور بددیانت نکلا. یہ تو ایک پورا سامان موجود ہے ایویڈنس کے ساتھ کہ عمران نیازی نے قوم کے ساتھ مذاق کیا ہے، قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اور فارن فنڈنگ کیس میں وہ سر سے لے کے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے. تو انشاءاللہ منطقی انجام تک پہنچے. عمران نیازی کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہیں. تو جب انصاف اور قانون کے مطابق حکومت آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ عمران نیازی کو نااہل ہونا ہے. مسلم لیگ نون کا ورکر ہوں. 1993 میں بھی بطور ایک اسٹوڈنٹ میں نے جیل کاٹی تھی اور اب بھی 2 سال جیل کاٹی ہے. اللہ کے فضل سے ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، لیکن اب عمران نیازی کے بھاگنے کی باری آ گئی ہے. سوات میں مسلم لیگ نون کے عہدیداروں اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نے کہا کہ اتحادی جماعتوں نے مشکل حالات کا ادراک کرتے ہوئے ملک کی خاطر حکومت میں آنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے IMF سے معاہدہ کیا کہ عوام کو کوئی سبسڈی نہیں دیں گے. PTI حکومت نے ملکی مفاد کے خلاف شرائط قبول کرتے ہوئے معاشی مسائل میں اضافہ کیا. امیر مقام نے ممنوعہ فنڈنگ فیصلے میں یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان بہت بڑے چور ہیں. کہ وہی عمران خان جو بڑے بڑے باتیں کرتا تھا، بڑے بڑے جھوٹ بولتا تھا، اس کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا. بار بار بیانی حلفی دیتا رہا ہے کہ کچھ نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں لیا، مگر وہ بات ثابت ہو گئی. آج تک اگر اس طرح نالائق بننا ملک کا وزیر اعظم ہوتا تو شاید پاکستان کو دیوالیہ ہونا تھا. ڈالر آج 400 روپے سے بھی اوپر جانا تھا اور مہنگائی کا طوفان سے بھی زیادہ ہونا تھا. مگر وہ بھی عمران نے ہمارے ہاتھ باندھ کر وہ IMF سے معاہدے کر کے کہ 1 روپیہ 1 پیسہ سبسڈی نہیں دیں گے. تب یہ معاہدے ہوئے، حکومت پر دباؤ بڑھی، ابھی تک موجود ہے کہ اگر آپ ان معاہدوں پر عمل نہیں کرتے تو ہم آپ کی جو امداد اور جو معاہدے ہوئے پھر ہم اس کے پابند نہیں ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے رسپیر ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے میجر جنرل امجد حنیف اور میجر طلحہ منان کی رہائش گاہ پر گئے اور لواحقین سے ملاقات کی. اسپیکر قومی اسمبلی نے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. انہوں نے کہا کہ پوری قوم اپنے شہداء کی مکروز ہے. سہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے. آزادی کا مہینہ چل رہا ہے.
हर दिन हर लम्हे वतन से झलकती मोहब्बत पूरी आबोताब के साथ चमक रही है। जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। शहर इक़्तिदार की शाहराएं सबसे लाली परचमों से सजी हुई हैं। रिपोर्ट करेंगी मरियम मलिक। दिल दिल पाकिस्तान, जान जा पाकिस्तान। मैंने अपनी चीज़ें लिया, ऐनक, शर्ट और झंडा। यौम आज़ादी 14 अगस्त के जश्न की तैयारी। इस्लामाबाद में हर तरफ लगे सब्ज हिलाली और कश्मीरी परचमों की बहार है। 14 अगस्त आने में चंद ही दिन बाकी हैं। जहां देखो आज़ादी के जश्न की धूम मची है। इस्लामाबाद में दाखिल होते ही सड़क किनारे लगे स्टॉल्स शहरियों को वतन से मोहब्बत के जज्बे को जगा देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा लगाते नौनिहाल पाकिस्तान के रंग में नजर आ रहे हैं। जो 14 अगस्त के लिए जो भी कह रहे हैं इनको लेके दे रहे हैं। झंडियाँ निकालेंगे, टाहे चिनाएंगे और अपनी 14 अगस्त को मनाएंगे। बच्चे को झंडे वंडे खरीदेंगे, कपड़े भी खरीदेंगे। एक बेटी भी है उसके लिए भी लूँगा इंशाल्लाह। तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। शर्ट लूँगी, बैजेस भी लगाऊंगी और फेस पेंटिंग भी करूँगी। 14 अगस्त के कपड़े पहनेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे। स्टॉल्स होल्डर्स भी सब्ज हिलाली परचम की सालमियत और कश्मीरी भाइयों के साथ हमदर्दी करने में पीछे नहीं। हर साल हम यहाँ स्टॉल लगाते हैं। बच्चों की आज़ादी है, बच्चे ले रहे हैं, परचम वगैरह ले रहे हैं, टी शर्टें रखी हुई हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के झंडे रखे हैं। कश्मीर ब्लादर वो भी हमारे भाई हैं, उनके भी हमने झंडे रखे हैं। आज़ादी का दिन, खुशी के लम्हात हर साल की तरह इस बार भी 14 अगस्त की भरपूर तैयारियां बता रही हैं कि पाकिस्तानी जिंदा कौम है। सब्ज हिलाली झंडियों और हरे मलबूसात से सजे ये स्टॉल्स पैगाम देते हैं कि पाकिस्तानियों की अपने वतन से मोहब्बत लाजवाल है। इस यौम आज़ादी पर मोहब्बत का इजहार भी खुलकर होने वाला है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। हिंदू और मुसलमान दो ऐसी कौमें हैं जिनका तर्ज़े माशरत, मजहब, सकाफत, कर्ज के हर चीज़ एक दूसरे से अलग है। इसी दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तान वजूद में आया। पेशावर से अम्माद अवान की रिपोर्ट देखिए। सालों तक एक साथ रहने वाली ये दोनों कौमें अंग्रेज़ों के ज़ेरे तसल्लुत आईं तो चालाक हिंदुओं ने साम्राज्य की ग़ुलामी को जैसे कबूल कर लिया। नतीजे में मुसलमानों के मुकाबले में उन्हें न सिर्फ मुराद मिली बल्कि वो सियासी धारे में जगह भी बनाने में कामयाब हो गए। मुसलमानों ने इस खित्ते पर सदियों तक हुक्मरानी की, इसलिए उनके लिए नाकाबिले कबूल था अगर उन्हें अंग्रेज़ जाते हुए हिंदुओं की ग़ुलामी में दे जाता। ऐसे में अल्लामा इकबाल जैसे साहिब बसीरत लोग सामने आए जिन्होंने सालों पहले वाज़े कर दिया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमियतें हैं जिनका रहन सहन, तारीख़ और जोग्राफिया एक दूसरे से नहीं मिलता। 23 मार्च वो दिन था जब कायदे आज़म की क़यादत में मुस्लिम लीग ने दो कौमी नज़रिए को अपनी बका की कुंजी करार देते हुए अलग वतन का मुतालबा किया और फिर उस पर डट गए। शायर मशरिक़ का ख्वाब मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज़ क़यादत में मुसलमानों के काफ़िले को लेता हुआ अपनी ताबीर की तरफ बढ़ने लगा। अंग्रेज़ सरकार मुसलमान क़यादत की कमिटमेंट को किसी लहजा कमज़ोर न कर सकी और यूँ 14 अगस्त 1947 को बरसग़ीर के मुसलमानों का नया वतन पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया। दो कौमी नज़रिया पहले भी एक हकीकत था और आज भी मजहबी आज़ादी, तशख़्ख़ुस और वक़ार की ऐसी अलामत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। अम्माद अवान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली के 75 साल मुकम्मल होने पर डायमंड जुबली मनाई जा रही है। इस हवाले से 10 से 14 अगस्त तक खुसूसी तकरीबात का इनेकाद होगा। तफसील से आगाह करेंगे मलिक उमर। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में 11 अगस्त 1947 को एक मुनफरिद हैसियत हासिल है। यही वो दिन है जब पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। इस दिन की मुनासबत से स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की हिदायत पे डायमंड जुबली मनाई जा रही है। डायमंड जुबली का मौजू मेरा पार्लिमान रहबर तरक्कियों कमाल है। डायमंड जुबली को शायान शान तरीके से मनाने के लिए 10 से 14 अगस्त तक पार्लियामेंट हाउस में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। डायमंड जुबली तकरीबात का आगाज तस्वीरी नुमाइश से किया जाएगा। पार्लिमानी तारीख से मुतल्लिक नामवर मुसव्वरों के फन पारे और कुतुब भी नुमाइश में रखी जाएंगी। इन नुमाइशों में पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख, पार्लिमान और आइन की बालादस्ती के लिए अरकान पार्लियामेंट की काविशों को उजागर किया जाएगा। पार्लियामेंट हाउस में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान समेत पाकिस्तान के साबिक वज़राए आज़म, सुदूर और गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत के पार्लियामेंट से खिताब और पार्लिमानी तारीख को SMDs पर दिखाया जाएगा।
11 अगस्त को अक़लियतों के आलमी दिन की मुनासबत से अक़लियती कन्वेंशन मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें मुल्क की तामीर और तरक्की में अक़लियती बरादरी की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। इस कन्वेंशन में मुल्क भर से अक़लियती बरादरी के कायदीन, नुमाइंदे और अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ अरकान पार्लियामेंट को मद्दू किया जाएगा। ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट का खुसूसी कन्वेंशन भी 11 अगस्त ही को मुनक्किद किया जाएगा। 12 अगस्त को मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक बनाने में नौजवानों के किरदार को उजागर करने के लिए खुसूसी कन्वेंशन मुनक्किद किया जाएगा। 13 अगस्त को एक खुसूसी पार्लिमानी कन्वेंशन मुनक्किद किया जाएगा जो 13 अगस्त की शाम से लेकर 14 अगस्त निस्फ शब तक जारी रहेगा। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख के सरकर्दा अरकान पार्लियामेंट की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए खुसूसी तकरीब भी मुनक्किद की जाएगी, जिसमें पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी और दीगर पार्लिमानी उमूर में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाले अरकान पार्लियामेंट को डायमंड जुबली यादगारी मेडल से नवाजा जाएगा। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, अब बात मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 5 अगस्त को यौम इस्तेसाल के तौर पर मनाने पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद इरफानी ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की तरफ से तनाज़ा कश्मीर पर हिमायत कश्मीरियों के लिए हौसला अफजाई का बाइस रहा है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से अपील की कि वो भारतीय मज़ालिम के खात्मे और कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत दिलाने में अपना किरदार अदा करें। इंटरनेशनल सिख फेडरेशन समेत मुख्तलिफ सिख तंजीमों ने भी 5 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर मनाया और मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत मनसूख करने के भारतीय गैर कानूनी इक़दाम की मज़म्मत की। जम्मू में एक इजलास के दौरान सिख तंजीमों ने मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को हिंदू अक्सरियती इलाकों में तब्दील करने के भारतीय फ़िलिस्तीनी हुक्मरानों के मज़मूम एजेंडे के खिलाफ मज़ाहमत करने का फैसला किया। मारूफ भारतीय सहाफ़ी और आर्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद ज़ुबैर ने नई दिल्ली में एक इंटरव्यू में कहा कि तिहाड़ में कश्मीरी नौजवानों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है। आलमी तंजीमों ने भारतीय मुजालिम पर नज़र बंद कर रखी है, इनके लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं करता। वाशिंगटन में वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम ने डिजिटल इश्तिहारी ट्रकों के जरिए मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को उजागर किया। पैगामात में जंगी जराइम पर भारत का मुहासबा करो, महसूर कश्मीर आलमी ज़मीर पर दस्तक दे रहा है, कश्मीर में आबादियाती दहशतगर्दी बंद करो और कश्मीर से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करने जैसे नारे शामिल थे। यूरोपीय पार्लियामेंट के 14 अरकान ने यूरोपीय कमीशन के सदर और नायब सदर को खत लिखा है, जिसमें मकबूजा वादी में इंसानी हकूक़ की संगीन और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। खत में कहा गया है कि मज़लूम कश्मीरियों की आज़ादी और बुनियादी हकूक़ को गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से दबाया जा रहा है। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से सियासी तर्ज अमल तर्क कर दिया है और इससे गैर मामूली फौजी तरीके से निमट रहा है। हालिया बारिशों और सैलाब से जिला दादू के 200 से ज्यादा देहात मुतासर हुए हैं, जहां इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। शराज अली इस बारे में रिपोर्ट करेंगे। हालिया बारिशों के बाद सिंध के कई इलाके मुतासर हुए, जहां सैलाबी सूरत हाल रही। मुसलसल बारिशों से सैलाबी रेले जहां जहां से गुजरे अपनी तबाहकारियां छोड़ते गए। खीरथर पहाड़ी सिलसिले से आने वाले पानी से जिला दादू के इलाके जूही, वाही पांधी, काछो समेत 200 से जायद गाँव सैलाब से मुतासर हुए। इन इलाकों में पानी तो उतर गया, लेकिन हजारों एकड़ रकबे पर काश्त की गई फसलें, कच्चे मकानात और माल मवेशी अपने साथ बहा ले गया। तकलीफ बेड़ी बना राशन पानी भी माण्हुनि वटि नाहे, इहो पर तकलीफ़ माण्हुनि के ॿी बीमारी भी मुख्तलिफ घणा आहिनि। सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज भी तेजी से फैल रहे हैं। नंबर 1 पर जो हमारे पास केस आ रहे हैं वो यही गैस्ट्रो के हमारे पास कंप्लेन आ रही है कि वोमिटिंग, डायरिया, फीवर, तो वो केसेस हम टॉप पर मैनेज कर रहे हैं। गुज़िश्ता कई बरसों के बाद मुल्क में गैर मामूली बारिशों के इजाफे के बायस सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए वफाकी व सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए नुकसानात का तखमीना और माली इमदाद के लिए इक़दामात कर रही है। गुजरते दिनों के साथ मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया, अद्वियात और मवेशियों के लिए चारे की किल्लत बढ़ती जा रही है। शराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, काछो, दादू। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की हिदायत पर अद्वियात की पहली खेप इस्लामाबाद से बलूचिस्तान के लिए रवाना कर दी गई है। पिम्स के डॉक्टर्स की 12 रुकनी टीम भी मुतासरीन के इलाज के लिए रवाना की गई। तर्जमान वज़ारत सेहत के मुताबिक खेप में बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, आँखों की बीमारी और वबाई अमराज से बचाव के अद्वियात शामिल हैं। अद्वियात की दूसरी बड़ी खेप आशुरा के फौरी बाद रवाना की जाएगी। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल के मुताबिक बच्चों के लिए टाइफाइड, इसहाल और खसरे से बचाव की वैक्सीन भी मुतासरा इलाकों में पहुंचा दी गई है।
वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक के ज़ेर सदारत रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में इजलास हुआ, जिसमें बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा इलाकों में राशन और तिब्बी इमदाद की फ्राहमी के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर रेलवे ने रेलवे की जानिब से मुतासरीन के लिए किए गए इकदाम को सराहते हुए कहा कि मुस्तकबिल में सैलाबी रेलों से बचाव के लिए प्लान मुरतब किया जाए। उन्होंने पुरानी रेलवे कोचेस को भी जल्द अज जल्द काबिल इस्तेमाल बनाने की हिदायत की। पाकिस्तान रेलवे ने वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की हिदायत पर बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए पेशावर कैंट से इमदादी अशिया से भरी खुसूसी ट्रेन रवाना की। इमदादी सामान में खाने पीने की अशिया, बिस्तर, अद्वियात, कंबल, कपड़े, जूते, बच्चों के खिलौने और दीगर अशिया शामिल हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ बरसाती नालों का दौरा किया और बारिश के आइंदा स्पेल के तनाजुर में सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने MP हॉस्टल, सिटी नाला, बर्न्स रोड, अकबर मार्केट और अतराफ के बरसाती नालों का जायजा लिया और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत की। और अब एक नजर डालेंगे मौसम की बदलती हुई सूरत हाल पर। अस्सलामुअलैकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूँ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरात, ओकाड़ा, जेहलम, फैसलाबाद, छाछरो, नगर पार्कर, मिट्ठी, बदीन, हैदराबाद, मोहनजोदाड़ो, लाड़काना, मीरपुर खास, लसबेला, यूब, कोहलो, बारखान, रावलाकोट और स्कर्दो में बादल बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का नया स्पेल आज रात से शुरू हो रहा है, जिसमें मंगल तक कश्मीर, इस्लामाबाद, शिमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मशरक़ी बलूचिस्तान और जनूब मशरक़ी सिंध में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। 10 से 13 अगस्त के दौरान इस स्पेल में शिद्दत आने का इम्कान है, जिस वजह से नशेबी इलाके ज़ेर आब आने और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। और लाहौर में दिन भर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। मज़ीद तफसीलात नवीद हयात की इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सुबह से बादलों का राज रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे मौसम खुशगवार हो गया और हब्स की शिद्दत में कमी हुई। शहर में होने वाली बारिश के बाद नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया, ताहम वासा और ज़िला इंतज़ामिया ने बरवक्त निकासी आप को यकीनी बनाया। पंजाब के दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। शेखपुरा में मूसलाधार बारिश से हर तरफ जलथल हो गया। ओकारा, पसरूर, पाकपतन, कसूर समेत दीगर शहरों में होने वाली बारिशों के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी हुई। PDMA के मुताबिक 10 से 13 अगस्त के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मज़ीद तेज़ बारिशों के बायस लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा है, जबकि दरियाए रावी, जेहलम और चनाब के बरसाती नालों में पानी के बहाव में इजाफे की तवक्को है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए PDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। और लाहौर के बाद रुख करते हैं शहर कायद का। कराची में बूंदाबांदी और हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, ताहम महकमे मौसमियात ने सिंध में मानसून के एक और स्पेल की पेशगोई की है। मज़ीद तफसीलात नूरी नासिफ से। बादल, हल्की हवा, दिलकश मौसम, हर तरफ हरियाली। बारिशों के बाद इन दिनों शहर कायद का मौसम और फिजा ऐसे ही खुशगवार महसूस हो रही है। कभी कभी हल्की बारिश और बूंदाबांदी माहौल को और भी निखार देती है। सिंध में बुहरा अरब से दाखिल होने वाला मानसून का सिस्टम शहर कायद में भी अपने असरात दिखाएगा, लेकिन इस दौरान हल्की बारिशें ही मतवक्के हैं, जबकि 10 अगस्त से इसी सिस्टम के साथ खलीज बंगाल से एक और सिस्टम शामिल हो जाएगा, जिसके बाइस तेज और मूसलाधार बारिशें बरस सकती हैं। दूसरा स्पेल है जो 10 अगस्त से शुरू होगा। 9 अगस्त से बाकी सिंध में, ईस्टर्न सिंध में, और 10 अगस्त से कराची में, और 13 अगस्त तक चलेगा। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश का स्पेल है, तो उसके नतीजे में फिर जाहिर है कि जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी दोबारा आ सकता है। और कराची, हैदराबाद, जामशोरो, दादू, लाड़काना, सखर और इधर टंडो मोहम्मद खान और ठट्ठा बदीन डिस्ट्रिक्ट्स में ख़ासकर अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी उस स्पेल के नतीजे में हो सकता है।
जो कि 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक चलेगा। मौसम में तब्दीलियां रूनुमा होती रहती हैं, ताहम बारिशें अब्र रहमत बने तो मौसम का भरपूर लुत्फ उठाया जा सकता है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की, अब आपको वापस ये चलेंगे मेंडेस की जानिब। शुक्रिया अब्दुल कदीर। नाज़रीन, गजा पर इसराइल की जारहियत में 16 फ़लस्तीनी शहीद हो गए जबकि 120 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। सिहरी फ़ौज की जानिब से फ़लस्तीनी इलाकों पर 100 से ज़्यादा मिसाइल दागे गए जिनमें 30 मकामात को निशाना बनाया गया। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुतादिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। फ़लस्तीनी ग्रुप इस्लामी जहाद ने जवाबी कार्रवाई में इसराइली इलाकों में रॉकेट फेंके। इसराइली फ़ौज ने ज़ेर महासरा गजा की पट्टी पर हमले के लिए हाई कमांड रूम कायम किया है और 25,000 रिजर्व फौजियों को ड्यूटी पर वापस बुला लिया गया है। सिहोनी फौज इलाके पर मजीद फ़ज़ाई हमलों की भी तैयारी कर रही है। इसराइल ने 5 दिन पहले अहम सामान की गुजरगाह बंद कर दी थी, जिसकी वजह से ईंधन की फराहमी न होने की वजह से गजा का वाहिद पावर प्लांट भी बंद हो गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि गजा में 5 साला बच्ची समेत मुतादिद फ़लस्तीनियों की शहादत पर दहशतगर्दी की ताज़ा मिसाल है। उन्होंने कहा कि बर्बरियत का अगर कोई चेहरा होता तो वो इसराइल है, जिसने नताइज की परवाह किए बगैर फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया। और नाज़रीन, चीन ने आबनाए ताइवान में अपना समुद्री निगरानी का मिशन मुकम्मल कर लिया है। बहरी जहाज हाईशुन 06 ने अपने 7 रोज़ा मिशन के दौरान 500 नॉटिकल मील से ज़्यादा सफ़र तय किया है। ये चीन का पहला बड़ा बहरी जहाज़ है जिसने 11 दीगर जहाज़ों और एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के साथ सुबह फुजियान के साहली इलाके में गश्त मुकम्मल किया है, जिससे चीन की बहरी निगरानी की सलाहियतों में मज़ीद इजाफा हुआ है। आबी ट्रैफिक के मुतहरिक कंट्रोल, हादसात पर हंगामी रद्द-ए-अमल, सामान की नकलो हमल और अहम शिपिंग चैनल्स की हिफाजत को भी यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। ये जहाज़ दुनिया के तमाम समुद्रों तक पहुँचने की सलाहियत रखता है। और नाज़रीन, रूस और तुर्की ने शाम में तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मिलकर काम करने के आज़म का इआदा किया है। सियाहती शहर सूची में सदर व्लादिमीर पुतिन की तुर्क हममनसब रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई। 4 घंटे तक जारी रहने वाली इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने तवानाई, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, यूक्रेन जंग, शाम की सूरत हाल और अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। एक माह के दौरान दूसरी मुलाकात में सदर पुतिन और सदर एर्दोगान तिजारत में इजाफे और इक़्तिसादी और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी मुत्तफ़िक हो गए। मुलाकात के बाद जारी मुश्तरका एलामिये में दोनों मुल्कों ने रूसी अनाज, खाद और दीगर खाम अशिया की बिला रोक टोक बरामद और यूक्रेनी अजनास की बरामदात से मुतल्लिक इस्तंबुल मुआहदे को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने पर भी जोर दिया। भारत में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमात कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ा मुजाहरा किया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दीगर रियासतों में कांग्रेस रहनुमा और कारकुन सड़कों पर निकल आए। उन्होंने मोदी हुकूमत और उनकी अवाम मुखालिफ पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। प्रियंका गांधी ने रुकावटें तोड़ते हुए सड़क पर धरना दिया। दिल्ली की सड़कों को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने कई कारकुनों को गिरफ्तार भी किया। रियाजुल जन्ना में नवाफिल की अदायगी हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। ज़ायरीन की सहूलत और वक्त की बचत के लिए सऊदी हुकूमत ने खुसूसी निज़ाम तरतीब दिया है। तफसील बताएंगे इमरान मनसब खान। मस्जिद नबवी में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा मुबारका और मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियानी हिस्से को रियाजुल जन्ना यानी जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। रोज़ा रसूल पर हाजिरी के लिए आने वाले हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो रियाजुल जन्ना में भी नवाफिल अदा करे, लेकिन ज़ायरीन की बड़ी तादाद को एक ही वक्त में महदूद जगह पर ज़ियारत कराना मुश्किल मरहला था। हुजाज कराम और ज़ायरीन की सहूलत के पेश नज़र रवां साल सऊदी हुकूमत ने मोबाइल ऐप एतमरना और ग्रुप की शक्ल में आने वालों के लिए ई हज वेब पोर्टल मुतारिफ करवाई है। सिर्फ उन्हीं ज़ायरीन को रियाजुल जन्ना में दाखिले की इजाज़त होती है जिनके पास इजाज़तनामा और मोबाइल ऐप एतमरना का बार कोड होता है। हमारे डेली हिसाब से, चूँकि तमाम नेशनलिटीज़ के हिसाब से एक कोटा मुतय्यन होता है और उस कोटा इसके हिसाब से हम फिर यूँ करते हैं कि जो हमारा पहले हाजी आ जाता है मदीना शरीफ और पहले जिसने पाकिस्तान जाना होता है, तो उसी तरतीब के साथ हम हाजियों की रियाजुल जन्ना का विज़िट जो है ना तरतीब दे देते हैं। हुजाज कराम की सहूलत के लिए मावनीन हुजाज ज़ायरीन को ग्रुप की सूरत में जमा करके अपनी बारी पर रियाजुल जन्ना की ज़ियारत करवाते हैं। नए तरीकाकार के तहत ज़ायरीन को अब बिना तवील इंतज़ार किए बासानी रियाजुल जन्ना तक रसाई मिल जाती है, जहां वो नवाफिल की अदायगी के साथ अपने रब के हजूर रोकर और गिड़गिड़ा कर दुआएं करते हैं। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मस्जिद नबवी।
मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से मुल्क भर में मजालिस और मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है, जिसमें उलमा ज़ाकिरीन वाक़या करबला पर मुफस्सल गुफ्तगू कर रहे हैं। वाक़या करबला की अहमियत के बारे में देखते हैं यासिर हुसैन की ये रिपोर्ट। इस्लामी तारीख में वाक़या करबला की अहमियत से कौन वाकिफ नहीं। शुहदाए करबला पर जुल्म और सितम के जो पहाड़ तोड़े गए वो आलम इस्लाम के लिए आज भी एक सवालिया निशान है। वाक़या करबला किसी सियासत और इक़्तिदार की जंग की बजाय सिर्फ और सिर्फ बक़ाए इस्लाम की जंग थी। यजीद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैयत चाहता था, जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये बैयत इसलिए न की क्योंकि आप शरीयत इस्लामी का नफाज चाहते थे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा बुलाकर और जुल्म के खिलाफ कमर बस्ता होने की दावत देने के बाद कूफी तो पीछे हट गए, लेकिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये जंग आखिरी दम तक लड़ी। हाकिम कूफा ने सफीर इमाम हुसैन मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया, जिसके बाद इराक की जानिब रवां सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले को रोकने के लिए इब्न ज़ियाद ने लश्कर भेज दिया, जिसकी जिम्मेदारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैयत लेना थी। 2 मुहर्रम को काफिला करबला पहुंचा और 7 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले पर पानी बंद कर दिया गया। सन 61 हिजरी में 9 मुहर्रम तक यजीद की बैयत के लिए जबरदस्त दबाव डाला गया, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैयत करने से इनकार किया। 10 मुहर्रम को सिर्फ 72 साथियों के हमरा हजारों की फौज का मुकाबला करने के लिए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में निकले। रोज़े आशूर असर तक एक एक करके तमाम रुफ़क़ा और इमाम अली मकाम ने जाम शहादत नोश किया। यूं हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शरीयत के खिलाफ किसी हुक्मरान की गुलामी कबूल करने पर मौत को तरजीह दी, जिससे इस्लाम की हक़ानियत वाज़ेह हो गई। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मुहर्रम उल हराम जहां और बहुत सारी रिवायात का अमीन है, वहीं इस महीने में नज़र व न्याज़ का भी खुसूसी एहतमाम किया जाता है। मुल्तान से यास्मीन जफर की रिपोर्ट देखिए। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शुहदाए करबला की याद में मुहर्रम की मजालिस और जलूसों के साथ जगह जगह लंगर और न्याज की तकसीम का सिलसिला भी जारी रहता है। ये सिलसिला भी इतना ही कदीम है जितना मजालिस और जलूसों का एहतमाम। आशूरा मुहर्रम में बिरयानी, नान, हलीम, कोरमा, हलवा और जर्दे की देगें तैयार की जाती हैं। जलूसों और मजालिस में शरीक अफराद की इन खानों और सबीलों के ठंडे मशरूबात से तवाज़ा की जाती है। यकम मुहर्रम उल हराम से लेके 10 मुहर्रम उल हराम तक लंगर इमाम मजलूम करबला का एहतमाम किया जाता है, जिसमें हजारों अकीदतमंद आकर लंगर इमाम मजलूम करबला तनावुल फरमाते हैं। हजारों की तादाद में यहाँ ज़ायरीन कराम आते हैं जो लंगर से मुस्तफीद होते हैं। लंगर की तैयारी में सिर्फ अहले तशय्यो ही पेश नहीं होते, बल्कि दीगर मसालिक के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए बैनुल मसालिक हम आहंगी की अमली तस्वीर बयान करते हैं। साहिब इस्तात की जानिब से लंगर की तैयारी के लिए खसूसी ऑर्डर्स दिए जाते हैं। न्याज की तकसीम का अमल 28 सफर तक जारी रहता है। न्याज की तकसीम का अमल 1400 साल से जारी है। आज़ादारान हुसैन का कहना है कि ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहेगा। यास्मीन जफर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि हमें सियासत से बालातर होकर सैलाब मुतासरीन की इमदाद करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने होंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया और गैर मुल्की कंपनियां मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती हैं। इस मकसद के लिए हौसला अफजा इक़दाम करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, पंजाब की 21 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया। वज़ीर आला परवेज़ इलाही और अरकान असेंबली भी तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की सदारत में सूबाई काबीना का इजलास भी हुआ, जिसमें यौम आशूर के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि 9वीं और 10वीं मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। इसके साथ हसास मकामात और जुलूसों के रास्तों पर मोबाइल सर्विसेज बंद रहेंगी। तमाम जुलूसों और मजालिस की CCTV कैमरों के जरिए कवरेज यकीनी बनाई जाएगी।
बलूचिस्तान असम्बली ने लसबेला हेली कॉप्टर हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और दूसरे शोहदा के हवाले से ताज़ियती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास कायम मकाम स्पीकर सरदार बाबर खान मूसा खेल की सदारत में हुआ। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगो की जानिब से पेश किए जाने वाले ताज़ियती करारदाद पर इज़हार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट समेत दीगर अरकान असम्बली ने कहा कि पूरी कौम पाक फौज के इन शहीद अफसरान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करती है। उन्होंने कहा कि इन शोहदा की बदौलत पाकिस्तान मजबूत है।